Hello, guys. Today I'm going to review or talk about this movie called Peninsula. Peninsula का एक और नाम है Train to Busan Part 2 और Train to Busan Presents Peninsula. ऐसे भी ये भी नाम है. So basically, it's a South Korean zombie movie, and it was released on approximately mid of 2020. Now, because it's a South Korean movie, forgive me, मैं किसी का नाम नहीं जानता, ना ही प्रोनाउंस कर पाऊंगा. Let's talk about this movie. And if you have seen Train to Busan 2, uh, क्या ये आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? Because Train to Busan was really a good movie. I would recommend that, first of all. अगर आपने Train to Busan नहीं देखी है, do watch it. और वो हिंदी इंग्लिश डब दोनों में अवेलेबल है. Do watch it. Peninsula, however, is available as of now only on Korean audio. मुझे इंग्लिश ऑडियो नहीं मिला, मैं सब के साथ देख रहा था. As of now ये किसी OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं है, but if you want to see Peninsula, drop in the comment below and find me on Facebook and Instagram, and then maybe I would share you the link where to find this movie. How is the movie? Very honestly, I don't like zombie movies. मुझे zombie movie series का concept ही नहीं पसंद, because it's pretty much the same thing over and over again, same repetition. कोई वायरस होता है, उस वायरस की वजह से लोग zombie बन जाते हैं, and zombies are like bunch of idiots. वो as such देख नहीं पाते, उनकी like narrow vision होती है. They only get attracted to light or sound. So जहाँ पे लाइट होगा उस तरफ भागते रहेंगे, हर्ड की तरह, या जहाँ पे साउंड सुनाई देगा उस साउंड की तरफ भाग जाएंगे, और जिसको काटेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, वो भी जॉम्बी बन जाएगा. दे आर नॉट एग्जैक्टली प्रोन टू बुलेट्स, बट ऐसा दिखाया गया कि गोली भी मारो तो शायद काफ़ी बार मारो तो वो मर जाएंगे, या फिर गर्दन काट दो तो मर जाएंगे. सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं अबाउट हाउ टू काउंटर zombie attack. But this is the same thing which is going on and on again in every movie, every web series, और कुछ नया नहीं मिलता मुझे zombie movies में. तो that's why zombie movies मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है. But then there are some web series and movies जो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, even if they were zombie movies और zombie concept में है, like Walking Dead. The web series Walking Dead is based on zombie and post-apocalyptic world, and it's good till a few season, at least 4 maybe. उसके बाद थोड़ा सा ड्रैग हो जाता है, in my opinion. Then there are some other movies and web series too. Train to Busan, like I said, is one movie जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी. It was basically a movie जहाँ पे ये ट्रेन सियोल से बुसान जा रही है, साउथ कोरिया में, एंड इस दौरान किस तरह से सियोल में जो इन्फेस्ट हुआ था, बुसान वॉज सेफ. वहाँ पे ये इन्फेस्टेशन नहीं फैली थी, सियोल में ये फैल गई थी. तो सियोल से किस तरह से लोग वहाँ से सिटी छोड़ के बुसान जा रहे हैं, एंड though everyone in that train were checked and they were all healthy, they were not infected, but कैसे करके वहाँ पे वो वायरस पहुँच जाता है, वो इन्फेक्शन पहुँच जाता है, या कोई इन्फेक्टेड zombie वहाँ पहुँच जाता है, and then the entire train while it's moving to Busan, ये पूरा chaotic situation हो जाता है, because you can't jump out of the train, you can't do anything. And during this entire movie क्या अच्छा लगा था, that एक consistent एक टेंशन था, एक claustrophobic टेंशन था. That in train आपके ज़्यादा hand movements या body movements नहीं हो सकती, because you would always be following straight or backward. एक ही direction में आप चलोगे. Yeah, so it's unidirection. आप इस तरह से शायद उतना नहीं चल पाओगे जितना free world में आप चल पा रहे हो, right? So आप अगर zombie attack भी हो रहा है, chase sequence, you can either move in one direction, right? One or two directions, that's it. आगे या पीछे. So वो भी एक claustrophobic सा एक atmosphere create करता है, एक tension सा atmosphere create करता है.
that how to save yourself from such a situation in a zombie attack. So that was quite nice, that was quite good. Plus साउथ कोरियन मूवी से मैंने ये देखा, चाहे वो हॉरर हो, साइकोलॉजिकल थ्रिलर हो, या इस तरह की जॉम्बी मूवीज हो, दैट इट ऑलवेज एड्स एन इमोशंस, इमोशनल वैल्यू काफी ऐड करते हैं वो अपने मूवीज में, दैट यू वुड गेट relate to certain characters in the movie or the web series. यहाँ पे भी ऐसा ही है, ट्रेन टू बुसान में भी ऐसा था, पेनिनसुला में भी ऐसा ही है, that there are some characters जिसके साथ आप एसोशिएट करने लग जाते हो. सो उनके दर्द या उनके जो सैड मोमेंट्स हैं, पेनफुल मोमेंट्स हैं, उससे आप रिलेट करते हो, आप भी उसके पेन को फील करते हो, आप भी उसके दुख या दर्द को फील करते हो. सो वहाँ पे ऑब्वियसली दिस मूवी बिकम्स अ बिट स्पेशल, रेगुलर ज़ॉम्बी मूवी जैसी नहीं लगती. ओके, नाउ हाउ पेनिनसुला इज सेम और डिफरेंट फ्रॉम ट्रेन टू बुसान. I would say it's not a sequel to Train to Busan, because yeah, Train to Busan में क्या था, it's moving from Seoul to Busan, point A to point B, right? It's just moving there, and उस moving train में zombie infestation हो चुकी है. How to save yourself from that? Peninsula, however, happens in an open world. ये already Busan में zombie infestation हो चुकी है, सब तहस नहस हो चुका है. वहाँ पे कैसे कुछ लोग वापस जाते, दोबारा क्यों जाते हैं, वहाँ से कैसे बचते बचाते वापस आते हैं. इस दौरान ऑब्वियसली बिकॉज इट्स एन ओपन वर्ल्ड, ओपन सिटी, तो ज़्यादा आपके मूवमेंट्स हो पाते, दिस इज नॉट यूनिलैटरल मूवमेंट कि आप ट्रेन की तरह नहीं हो, ट्रेन के कोच के अंदर बंद नहीं हो, यूर एन ओपन वर्ल्ड. सो यहाँ पे वो पार्ट नहीं है जो ट्रेन टू बुसान में था, दैट क्लॉस्ट्रोफोबिक टेंशन नहीं है, बट देन उसको कंपनसेट करा है यहाँ पे कुछ एक्शन सीन्स हैं. मैं इसका भी ब्रेक डाउन दूंगा. So Peninsula में क्या होता है कि before calling it, like I said, Peninsula is not a sequel to Train to Busan, but I would say that picture this, it happened in the same world, you can say like that, kind of a parallel story running with Train to Busan, same world में, but not exactly a sequel, because there are no same characters, same actors नहीं है. और जहाँ पे Train to Busan ख़त्म हुई, वहाँ से पेनिनसुला शुरू हुआ ऐसा भी नहीं कह सकते, बिकॉज ट्रेन टू बुसान खत्म हुआ जब वो ट्रेन सियोल से बुसान पे आके रुकी, एंड ऑब्वियसली बुसान भी इन्फेक्टेड हुआ. पेनिनसुला स्टार्ट होता है जब बुसान खत्म हो गया, सब ज़ॉम्बीज वहाँ पे इन्फेस्ट करके खत्म कर चुके हैं पूरी सिटी को. फिर वहाँ पे क्या होता है, दैट्स पेनिनसुला. सो यू कैन से इट्स ऑन द सेम थीम, but and in the same universe too, but not a sequel to Train to Busan. Maybe because it happened in Busan, it's a zombie movie, and because Train to Busan was quite hit, so they thought to capitalize that, maybe thought of bringing revenue in Peninsula too. It's a long movie, over 2 hours movie. अब किस तरह से ये मूवी आपको एक्साइट करेगी या नहीं करेगी? Well, फर्स्ट हाफ एन आवर और 20 मिनट्स ऑफ द मूवी थोड़ा सा कैरेक्टर बिल्डअप होता है. सो वहाँ पे you might feel कि come on, bring up the action part. तो वो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है फर्स्ट 30 मिनट्स, बट दैट्स बेसिकली द कैरेक्टर डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन. हर एक कैरेक्टर का, जो मेजर कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में, एक या दो मेजर कैरेक्टर्स हैं, उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है कि वो ऐसे क्यों बने, क्या ज़रूरत आन पड़ी थी वापस पेनिनसुला में जाने की. वो थोड़ा सा कैरेक्टर बिल्डअप होता है, वो सिचुएशन बिल्डअप होता है. उसके बाद जो सिचुएशंस हो रही हैं फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, थोड़ा सा ड्राइंग लगेगा, थोड़ा सा लगेगा कि इट्स गेटिंग स्ट्रेची, इट्स गेटिंग बोरिंग. आई मीन मेरे तो ऑनेस्टली ख्याल आया था कि चलो फर्स्ट हाफ एन आवर तो देख लिया, उसके बाद ऑलमोस्ट 1 घंटा भी देख लिया, बट देन मज़ा नहीं आया. ट्रेन टू बुसान वॉज मच बेटर, पेनिनसुला में वो बात नहीं है, ऐसा मुझे लगा था. फिर जो लास्ट का 30 मिनट्स है, आई गेस इट कंपनसेट्स एवरीथिंग, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर दैट एक्शन, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट पार्ट, क्योंकि ट्रेन टू बुसान में इंटायरली इट वॉज अ गुड एटमॉस्फेरिक एक्शन,
कि जैसे मैंने कहा कि ट्रेन में आप एक साइड से दूसरे साइड में यूनिलेटरल डायरेक्शन में ही चलोगे आप, सो दैट क्रिएट्स एन क्लॉस्ट्रोफोबिक टेंशन। और उसके रिलेटेड में जो एक्शन सीन्स हैं यहाँ पे, बिकॉज इट्स एन ओपन वर्ल्ड, कार चेजिंग सीन्स हैं, एंड वो कार चेजिंग सीन्स क्या अमेजिंग सीन्स हैं, मजा आ जाता है, फास्ट एंड फ्यूरियस की याद आ जाती है आपको। गुड गुड सीन्स, आई मीन जो जिस कैरेक्टर ने एक किम करके कैरेक्टर है नाउ, अब वो कौन है क्या है, आई एम नॉट गोना रिवील दैट, इट्स अ नॉन स्पॉइलर रिव्यू। सो जो बेसिकली कैरेक्टर है किम, जिस तरह से गाड़ी चलाती है, ओह ऑसम। एंड जिस तरह से वो गाड़ी को टर्न करके सारे zombies को एक तरह से स्वीप करते हुए जा जाती है, एंड कैसे वहाँ पे कुछ जो सर्वाइवर्स हैं, दे आर बेसिकली एन इविल सर्वाइवर्स, दे आर लाइक स्कैवेंजर्स, उनसे कैसे बचते बचाते हुए जाती हैं, दैट्स रियली गुड टू वॉच। और जो कैमरा वर्क यूज हुआ है थोड़ा स्लो मोशन में, रियली गुड रियली गुड, द एक्शन सीन्स हैव बीन शॉट रियली गुड। बट ये सारे के सारे एक्शन सीन्स आपको, ये जैसे मैंने कहा कि ये ऑलमोस्ट मिड 1 आवर में, फर्स्ट 30 मिनट्स तो खैर कैरेक्टर बिल्डिंग में चला गया, फिर जो नेक्स्ट 1 आवर है उसमें भी नहीं दिखेगा। सो इन ऑल आपके फर्स्ट 90 मिनट्स में एक्शन सीन्स उतना नहीं दिखेगा, हल्का फुल्का दिखेगा, बट वो इतना कोई पावरफुल दमदार एक्शन सीन्स नहीं होगा कि यू वुड वांट कि दिस इज द एक्शन सीन आई वाज वेटिंग फॉर। नो, इस फर्स्ट 90 मिनट्स में इतना कोई मेजर एक्शन सीन्स नहीं है। लास्ट 30 मिनट्स में जो एक्शन सीन है, दैट आई गेस कंपनसेट्स एवरीथिंग, वो आपको बैलेंस कर देता है, एंड देन यू फील लाइक दिस इज द पार्ट वेयर आई वाज वेटिंग फॉर, देन यू वुड वेट फॉर और रूट फॉर दैट मूवी, देन यू वुड से दैट पैसा वसूल हो गया, अब ये मूवी बोरिंग नहीं है। बट या लास्ट 10 मिनट्स में फिर से थोड़ा सा इमोशनल एंगल आ जाता है, देन यू वुड अगेन फील रिलेटेड टू दोज कैरेक्टर्स, फिर से वो इमोशन पार्ट्स, और you would feel both dard and pain of that characters. Uh, um, it's a good movie. You can watch it. But like I said, it's not an exceptionally well masterpiece movie. But still, आप ये देख सकते हो। अगर मैं कंपेयर करूँ ट्रेन टू बुसान ओरिजिनल से और इससे, yeah, definitely I will pull ट्रेन टू बुसान up than पेनिनसुला। बट पेनिनसुला को अगर मैं इंडिपेंडेंट मूवी के हिसाब से देखूँ, नॉट कंपेयर टू ट्रेन टू बुसान, इसको मैं सीक्वल की तरह से ना देखूं, एक इंडिपेंडेंट ज़ॉम्बी साउथ कोरियन मूवी के हिसाब से देखूं, तो या नॉट बैड, देख सकते हैं आप इसको। एक्शन सीन्स तो मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा, लास्ट 30 मिनट्स के एक्शन सीन्स। सो ये मैंने क्यों ब्रेक डाउन किया, बिकॉज इफ यू फील लाइक कि थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है ड्यूरिंग दैट 1 आवर, व्हेन आई सेड जस्ट गिव इट अ शॉट, गिव इट पेशेंट टाइम, एंड वो लास्ट 30 मिनट्स का वो एक्शन सीन आई गेस कंपनसेट कर देगा। बट हैविंग सेड दैट, वो जो फर्स्ट 1 आवर का पार्ट था, फर्स्ट 90 मिनट का पार्ट था, ऐसे नहीं कि यू वुड वांट टू क्लोज इट, स्टिल उसमें बिट्स एंड पीसेस में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे यू वुड वांट टू नो कि आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, आगे क्या होगा, अब क्या होगा। वेल, ओवरऑल एवरी ज़ॉम्बी मूवी और एवरी सच मूवी इज प्रेडिक्टेबल, आपको पता है क्या होना है एंड में। But still, I guess the way a movie is being treated or executed, वो आपको बात क्या लगता है, एंड उसी की वजह से आप ये मूवी देखते हो। So having said that, बताइए ये मूवी आपको कैसी लगी, पेनिनसुला, अगर आपने ये मूवी देखी है या प्लान कर रहे हैं देखने के लिए, एंड आपको ये रिव्यू कैसा लगा, let me know, comment below, and I'll see you on my other video. Till then, take care, bye.